I need from every language at least one person in my office. जो भी बिजनेस है आजकल में उसमें मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है। इतने सारे रियल्टर्स हैं दुबई में, क्यों जा रहे हो इस इंडस्ट्री में, पैसा वेस्ट हो जाएगा। They are only there to make money. और जब जी। मैं रासल गाँव में जॉब करता था जी। तो एक शॉप की सेल ओनली 30,000 dirham। सर आपको क्या पसंद आया डॉक्टर इसाम के बारे में? Why did you hire him? Project management, it takes me again to the real estate. एक मैनेज करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए मेरे को एक बंदा चाहिए। एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना एक्स्ट्रा एफर्ट पड़ेगा। डालना ही पड़ेगा और तभी आप सक्सेस हो। As I say, he's a skywing. You're saying that he can become one of the Guinness record holders. Why not? ये दिखने में वैसे हीरो दिखते हैं। According to what we discussed, we need international team. मैंने एक डील क्लोज करी थी इन अफ्रीका में। आपको तो दिस इज $500,000। I love you. That was the code that he closed a deal. That there is some kind of magnet takes me to the real estate. Good evening, everybody. Welcome to episode 2 of the Skywing podcast. Today we have very special guests, the general manager of the Skywing, Dr. Isam, and the CEO of Skywing, Mr. Sunil. How are you, sir? I'm fine, thank you। How are you, sir? Great, thank you. Great. Thank you very much for being part of this podcast today. Thank you very much for being part of this podcast. So today we will begin with your journey together as to how you became part of Skywing, how Dr. Isam, how did you find Dr. Isam, and how did Dr. Isam found Skywing. So let's begin with Dr. Isam. Sir, please tell me a little bit about yourself. What's your background? Where are you from? Okay. Thank you very much for having me here in this great podcast. Actually, when you introduced us in this series, and you mentioned Mr. Sunil as the CEO, I am telling you he is the Skywing, and it's not only a name; it's a vision and it's a mission that we are following. And the more he fly, the more we follow. Together. Yes, and actually, I started my career in the architecture and real estate. My background is architecture background. I have PhD in architecture, and I'm from Egypt. So I've been born between the iconic buildings and iconic heritage in Egypt, Wow. and I've been part of it for a long time. Then my journey with real estate started while I was very little kid, when my father he gave me the responsibility of managing our property, our house, and I was the one who was responsible for collecting the rent and taking care of the facility management. If there is any problem with plumbers, with water, with electricity, I am the one who is responsible for it. I was actually, I didn't know anything about anything at that time. Of course, I was only 8 years old. Your job was to just collect rents. Yes. And my father, the more he find me do something good, he gave me more responsibility. Okay, now you can go and renew the contract with these people. Now this apartment is vacant, find another one. Go to the broker, Simsar at that time, and ask him that my father is asking you to find us another tenant, and so on. So I fall in love with this kind of business. And when I grow up working in the real world of architecture, it took me directly again. The more I am working in architecture, in interior designing, in culture heritage, in property management, there is some kind of magnet takes me to the real estate. So every time I work in any field, even the leadership and property management and project management, it takes me again to the real estate. So your fondness was always towards the real estate industry. In the beginning, I was like a little bit feel afraid about it because it's big responsibility while I was kid. Right. And then when I traveled outside abroad, and I started maybe more than 25 years ago, Wow. I started my personal journey outside Egypt. And the more I stay away from real estate, the more it attracted me again. Until I came here and I met Mr. Sunil. Okay. And
our interview is very. It was normal interview. He was like posting a job, and it was normal interview, and it was meanwhile it was the weirdest interview I ever met. Why do you say The that? kind of questions he asked me. Okay. No one asked me before. ऐसा क्या पूछ लिया सर आपने? It showed that this person is different. This person is the one I'm looking for. Correct. I always have this passion to work. Okay, not only just hard work. I am very dedicated to what I'm doing. I am all in, and I was looking for someone like my mirror Who is equally as passionate as you are, and more. and more. Okay. Okay, even if he will not give me direction at that moment, I am sure that he will, the one who's giving the direction soon. Correct. Because the moment I saw him in the future. I didn't see him in the same moment. Correct. And I said, I want to work with this guy. Yeah. And if he offered less salary, I would agree. But I will not, this is a secret, but yeah, I have to reveal it now. But I really love to work with him. And with time, everything proved. What did you like the most about meeting Mr. Sunil, and what inspired you or what motivated you to join Skyway? He's so fast in thinking, fast in talking, fast in reaction and action. I was looking for this kind of person long time ago. Okay. Once I found him, I said, I finally find someone who can move faster than me. Okay. Understood. So once I saw him, and then he proved to me that everything can happen. Anything that you plan. Anything is possible. Anything can happen. Everyone knows everything is possible, Yeah. but he proved to me it can happen. He can do it, and he done Correct. it. And maybe in the previous episode, Yes. he explained Yes. his achievement Yes. He and did. how fast he achieved Yes. this one. Yeah. I will, if I will talk about Sunil and his achievement, who he is, and how he become what he is now. Correct. I will take longer than this hour or 2 hours that we are taking for the episode. Yes, because you're so inspired by his passion towards work. Yes. Right? Sir, आपको क्या पसंद आया डॉक्टर इसाम के बारे में? Why did you hire him? एक्चुअली जो इनका एक्सपीरियंस था और जी। जो उनके पास आइडियाज़ थे जी। वो मेरे को थोड़ा पसंद आया। जी। और मेरे को एक स्टार्टअप करना था और मैंने देखा कि ये मैनेज कर सकते हैं, कंपनी कर सकती है। जी। सेल्स और ये तो मेरे लिए बहुत इजी थिंग्स है। अभी सेल्स करना, आई एम बॉर्न विद द सेल। करेक्ट। सेल्स मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। एक मैनेज करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए मेरे को एक बंदा चाहिए था, एक गुड पर्सनैलिटी का बंदा चाहिए। ये दिखने में वैसे हीरो दिखते हैं। सो और मैंने जो उनसे डिमांड रखी थी, उन्होंने मेरे को फुलफिल किया कि मेरा प्लान था, उनको उन्होंने फुलफिल किया कि हाँ मैं ये कर दूंगा, और उसमें भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। ग्रेट। सो मेरा पूरा सेटिंग, चीज़ें और बातें सब इन्होंने हैंडल करी है। जी। मेनली क्या होता है, ये अपने काम से बहुत प्यार करते हैं। करेक्ट। मैं तो प्यार करता हूँ। मेरे को भी एक ऐसा बंदा मिल गया जो अपने काम से प्यार करता है, जो पैशनेट है। करेक्ट। इनको अपने काम से प्यार और ये काम के प्रति 100% देते हैं, तो यही उनकी बात मेरे को पसंद में आई, और इसलिए हम कंटिन्यू और आगे जब तक स्काइविंग है तब तक कोशिश ये साथ ही रहेंगे, कहीं पे भी नहीं जाएंगे। ज़रूर। ये आज हमारे मैनेजर्स हैं, या हम जैसे बोलते हैं कि अपन बोलते हैं कि एक बंदा अपने लिए काम करता है। मेरा मानना कुछ अलग है। जी। अपन इस दुनिया में आए तो बोलते ना कि एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है। तो बट इनके एक्सपीरियंस के सामने मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट हूँ, मेरी सेल्स अच्छी है। जी। जैसे बोलते ना एक देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, उसी के हिसाब से कि दे आर डिजर्व, ही डिजर्व, जो डिजर्व करता है उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है। करेक्ट। मैं भी मेरे क्लाइंट से देता हूँ, मैं इनको देता हूँ। तो एक एम्प्लॉय और का और एक बॉस का रिलेशन ही है। एक समझ लो एक फैमिली का रिलेशन है। ही इज माय फैमिली नाउ। ही इज रियली, आई लव हिम लॉट ऑफ, एंड ही इज माय फैमिली।
That sounds very, very sweet and very nice to say about each other. But so पिछले एपिसोड में आपने बोला था कि you have to be honest to your work और ऑनेस्टी आगे लेके जाती है. सो डॉक्टर इसाम में ऐसा आपको इंटरव्यू के टाइम पे कैसा लगा, क्योंकि आप पहली बार मिल रहे थे ऑब्वियसली. सो हाउ डिड यू फील दैट डॉक्टर इसाम इज एन ऑनेस्ट पर्सन? मैंने जो बोला था ऑनेस्टी का मतलब मेरी नज़र में डिफरेंस है. जो इसाम डॉक्टर इसाम सर का जो भी है जी, जो भी डॉक्टर इसाम का एक्सपीरियंस है, चीज़ें हैं, मैंने उनका जो प्रोफाइल देखा था, जो बायोडाटा देखा था, उसमें पूरा डिटेल्स था. उसके बाद मैंने इनको 1 वीक का टाइम दिया था जिस पे इन्होंने प्रूव किया, जैसे ऑफिस ढूंढना है, ये ढूंढना है, उन्होंने बहुत स्पीडली काम किया. मैंने भी उस पर रिएक्ट किया. हॉनेस्टी का मेरी नज़र में मतलब अलग है. आदमी खाली ऐसा किसी ने पैसा चुरा दिया वो डिसऑनेस्ट, ऐसा नहीं है जी. ऑनेस्टी होती है अपने काम के प्रति. आपको अगर कोई टास्क दी गई है, मॉर्निंग 9 o'clock आना है, 6 o'clock आपको कोई टास्क है, उसको आपको कंप्लीट करना है. अगर आप उसमें भी काम नहीं करते हो या उसको टालते हो या काम चोरी करते हो तो मेरे हिसाब से वो भी डिसऑनेस्टी है. आपको अपने काम के प्रति ऑनेस्टी दिखानी है. आपको जो टास्क किया हुआ है आपको काम करना है. लास्ट पॉडकास्ट में ये भी बात था, जो अपना काम से अभाव करता है जी, उसको भली उसके अकॉर्डिंग वो भली सोचता है. आदमी आज किसी ने कोई जॉब कर रहा है, उसकी व्हाटएवर कोई भी सैलरी है, अगर वो अपने उसका एग्जाम्पल, उसका काम है 6 hours करना है, 7 hours करना है, उसका जो टास्क है वो कंप्लीट होता है, वो आराम बैठता है. वो अपने काम से जब तक ज़्यादा काम नहीं करेगा तब तक वो सेठ की नज़र में नहीं आ सकता. करेक्ट. सो दैट इज अ डिफरेंट, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा और तभी आप सक्सेस हो सकते हो. करेक्ट. Doctor sir, how did you form the team? Because Sunil sir said that he gave you the responsibility of building a team. So what was your vision to build the team for Skywing? Okay. Actually, I have the international background of working with diversity, more than one nationalities. I've been in the GCC in Europe for more than 25 years. So when I sat with him many times before we go and do this. Okay. So the first thing we agreed on which member of the team we should hire first. Okay. Which of course in any real estate company you need to have very strong admin. Admin. Yes. Okay. Which we were very lucky to find this one, Pooja. Maybe next episode you can talk with her how she joined. Absolutely. And once we have this one, then she can take some responsibility of helping me to hire the people. We start hiring our team even before we get our office. Okay. So we were working parallel. Success is a twin of speed. This thing I always say all my life, I only saw it happening between me and Sunil. He is, as I say, he's a Skywing. He's so speed, so fast. The success is his twin all the time. Right. So that gave me the opportunity and authority to start making the team. According to what we discussed, we need international team. We need people from different backgrounds, speaking all kinds. He told me one sentence. He said that I need from every language at least one person in my office, from every language in the world. This task we didn't yet complete it because it's long-term and ongoing process. Yes. But I can tell you that we hired a complex team and from different backgrounds. We hired from Hindi background, Indian speaking, Urdu speaking, Arabic, English, French, Russian, Persian, Turkish. All this was in the very beginning. So very diverse portfolio of people that you hired. And any real estate company, when they start, they run for, of course, for the sale. Right. The first thing, the first goal is to make revenue. Correct. He told me, I'm not here for money. I'm here to build my name. Right. So what is the first thing that we need to do? I told him we have a plan for that. Individual branding for you. Okay. And he discussed this one with me. He put all the lines, what he want to be, where he want to go. And then I put how we can do this. And then we start hire marketing team. Imagine that startup company with marketing team, and he's not until now, he's not 100% satisfied with the
capacity and quality of what we are providing. He Right. needs more. Yes. Why? Because he wants to achieve very fast his goal. Right. Not in 365 days as we planned. Right. He want to have it in only 90 days. Correct. We are on. करेक्ट Yeah. सुनील सर, जब कोई गोल की तरफ आप इतनी स्पीड से जाते हैं तो हमने बचपन में सुना है कि बड़ों को कहते हुए कि धीरज रखो या स्लो से काम करो। आप मानते हैं कि हर चीज़ को फास्ट करनी चाहिए, स्पीड से करनी चाहिए, तो इसका आपके विजन में कैसा, आपका वैल्यू क्या है इसकी तरफ? एक्चुअली क्या है, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है जी और मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा फास्ट है। जी। और जैसे आपने बोला कि बड़े बोलते हैं धीरे से को, जो बड़े हैं उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा जी। लेकिन मेरा टास्क है, मैंने बहुत बिजनेस किए हैं और जी। मैंने बहुत फास्ट डिसीजन लिए हैं और उसमें से मैं 70-80% में सक्सेस में हूँ, 20-30 में मैं लॉसेस भी किए हैं। ऐसी बात नहीं कि हमेशा सक्सेस रहते हैं जी। लेकिन मैं सोचता हूँ चांस मिलता है तो उसको ग्रैब करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करो और आपको टाइम मिलता है आपको उसको खींचो, फिर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। और अगर आप कोई काम करते हो, जी। ठीक है, मेहनत इंसान की रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन जो करवाने वाला होता है ना ऊपर वाला ही होता है, उसके Correct. सपोर्ट के बगैर अपन कुछ भी नहीं कर सकते। करेक्ट। उसको कहीं ना कहीं पहुंचाना होता है अपने को, तभी वो अपन को होता है। और मैं एक चीज़, जब आप काम करते हो चीज़ उसमें जो तकलीफें आती है ना, तो उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि पर तकलीफ भी उसी को देता है जो उसको सहन कर सकता है, नॉर्मल आदमी को तकलीफ नहीं देगा, जिसमें तो उसको सहन करने की शक्ति हो, उसी को देता है। जी। तो आई एम कीप टेकिंग चैलेंज Correct. और मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज आते हैं, मैं चैलेंज देता रहता हूँ। आपको चैलेंज अच्छे लगते हैं? बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ जब तक मैं जीऊँ, जब तक मैं काम करूँ, वो ऐसे चैलेंज मिलते रहे। आई एम नॉट अफ्रेड फॉर देम। करेक्ट। जो होगा वो अच्छे के लिए होता है, कोई दिक्कत Absolutely. नहीं। जब आप एक टीम फॉर्म करते हैं, क्योंकि स्काईविंग इज अ वेरी न्यू कंपनी, और जब आप एक टीम फॉर्म करते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है कि कैसी होनी चाहिए आपकी टीम? व्हाट इज द क्वालिटी दैट यू लुक इन योर टीम? बिकॉज आपका विजन बहुत फास्ट है, आप बहुत फास्ट पेस जाना चाहते हैं, बट हर एक का पेस ऐसा नहीं होता। मैं आपको उसके बारे में क्लियर करना हुआ, जो भी बिजनेस है आजकल में उसमें मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है। जी। सेल्स करना, कस्टमर क्लाइंट लेके आना, प्रॉपर्टी सेल करना या रेंटल करना, जो भी हमारे बिजनेस का वर्किंग स्टाइल है वो सब एक ईजी है। एक मैनेजमेंट करना, हमें उसमें ही डिस्कशन हो रहा था कि हम उसको मैनेज कैसे करें। जी। और आपको आगे चल के इससे बड़ा भी हम और बड़ा सरप्राइज देंगे कि हम क्या करने वाले, वो तो हमारा नेक्स्ट पॉडकास्ट आएगा या नेक्स्ट हमारा जो कुछ भी आएगा उसमें आपको पता पड़ेगा कि हम क्या करने वाले हैं। डेफिनेटली। लेकिन मैं आज जो भी कोई सजेशन देना होगा किसी को, तो अपने मैनेजमेंट पे काम करो, अपने सिस्टम पे काम करो। इफ योर सिस्टम इज गुड देन यू विल बी सक्सेस, देयर इज नो इफ एंड बट। जी। और जो आपकी जो टॉप लेवल की जो टीम होती है, मैनेजमेंट टीम होती है, वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। वो स्ट्रांग होनी चाहिए, नीचे वाले भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप लोग आपके लिए काम करें जी। आपको उनको सिक्योरिटी मिले। जी। और आजकल क्या है, ऐसे लोग कम मिलते हैं, उसको ढूंढना पड़ता है, करेक्ट। चीज़ें करने पड़ते हैं, और आपके आसपास के लोग आपको सपोर्टिव करें। करेक्ट। आपका विजन बड़ा है, आप अकेले कोई भी विजन नहीं कर सकते, हर विजन के पीछे कोई ना कोई होता है। अगर मेरा कोई विजन है, मैंने कोई विजन देखा है, मेरे को उसको पूरा करना है, तो मेरे पीछे बहुत जन है, उसमें डॉक्टर साहब भी हैं और मेरी वाइफ भी है जी, पूजा भी है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे विजन में मेरे साथ खड़े रहते हैं और हमेशा मेरे को कहते हैं सर यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। बहुत सी चीज़ें हैं आपको कॉन्फिडेंस देते हैं और मैं भी उनकी बात सुनता हूँ। पहले मैं किसी की नहीं सुनता था, लेकिन अब मैं सबकी सुनता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी क्या है, किसी की कोई सलाह दी बहुत काम आ जाती है और मैं आई एम वर्क ऑन इट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें क्या काम आती हैं। करेक्ट। जब आप इस बिजनेस में आ रहे थे तो आपको लोगों ने बोला था कि नई इंडस्ट्री है, मत ट्राई करो, बहुत कंपटीशन है, इतने सारे रियल्टर्स हैं दुबई में, क्यों जा रहे हो इस इंडस्ट्री में, पैसा वेस्ट हो जाएगा, ऐसी चीज़ें बोली थी आपको? एक्चुअली मेरे को बहुतों ने डिसमोटिवेट किया था जी, लेकिन मैं ये पहला बिजनेस में मैंने 1-2 महीने सोचा था। इससे पहले जो भी बिजनेस किया मैंने सेम डे डिसीजन लिए थे। इस बिजनेस में 2 महीने मैंने सोचा, कम से कम आपने 2 महीने का टाइम लिया था अपने लिए, क्योंकि मेरे को मेरे घर वालों को प्रेशर था कि तू इतने सारे बिजनेस है, फिर एक और बिजनेस ऐड कर रहा है जी। तो मैंने सोचा, फिर फाइनली मैंने अपना डिसीजन लिया, मेरे को करने का ही है। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है
कि जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं 2003 में जब इधर आया था, जी, आई एम कमिंग ओनली 400 सैलरी पैकेज, करेक्ट, दिरहम 400। जी, अभी 400 लोगों से ज़्यादा मेरे पास स्टाफ काम करता है, 400 मोर देन 400 पीपल। तो जब मेरे पास कुछ नहीं था, आज 400 लोगों का परिवार तो चल रहा है। जी, सो Absolutely. मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग है, मैं लिटिल डिफरेंट हूँ लोगों से। जी, कि आज एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर मैं काम करता हूँ ना तो मेरे को समझो 200,000 बचते हैं। जी, अगर काम नहीं करूँ ना तो मेरे को 400,000 बचेंगे। सो दिस इज माई लाइफ स्टाइल। करेक्ट, सो मैं क्या आदमी बोलते हैं ना, पैसे देख के टेंशन खरीदता है, वो वाला काम है। बट आई लव इट, मुझे पता है क्योंकि आपको चैलेंजेस अच्छे लगते मेरे को हैं। चैलेंज अच्छे, और मुझे पता है कि ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं एक दिन कहीं ना कहीं लेके जाएगी। जी, Doctor sir, when you joined Sunil sir, like he was just mentioning that he is very fast paced, and you are very passionate about real estate as well. So, didn't you think that the team that you're hiring, apart from diversity, it should also have the same level of passion to take Skywing forward? So, what are the qualities that you look for when you hire somebody for your team? Do you look for these qualities, and what specific qualities are you looking for? Well, in real estate, the market is full of brokers, whoever registered or non-registered, Right. people, many people working in the field of real estate. Right. The first thing that we are looking for is the ethics, people with ethics. Ethics. Yes. Okay. And the ability to sell is beyond what the people think. They are only there to make money. They are hungry for money, but they are not greedy. Okay. Okay. What is the difference? The difference that he's all the time working to close his deal, to make more money, but he's not jumping to anyone else's deal. When he is in partnership with another agent, once it is done 50-50, he will not go around him like many other people and going directly to the owner and collect more commission. Right. So He's not is, being greedy. He is hungry, but Yeah. he's not greedy, because greediness is negative thing. Understood. But the hunger for making success, for achieving what they want, this is what we always looking for. Okay. Right. So of course, in real estate there is ups and downs. Right. And in my life story, the ups and downs is like accompanying me from time to time. Maybe that's why one of the reasons why he likes me, that this guy Because you have similar life stories. both of you. became a millionaire once, then he peak go down, then again he became a millionaire, Yes. working with millions. Yes. Then again he start. No one starts from scratch. No one starts from zero. You are continuing your journey, but with different challenge, Correct. different kind of story. Understood. So in our current team, that I can tell you that the achievement of small team being in the very beginning, however the challenges we faced, in the first week, they achieved to get there from the first calls in the secondary market, all the Form A that they need to, of course, the people working in real estate, they understand this. Right. And then after that, they manage to get some interested buyers. And then they start to closing. So in the first month, small team achieved big achievement. Right. And they see Mr. Sunil as a role model in front of them. I was giving training for everyone. Okay. Then he told me I will join this training, but he never joined. Okay. He said, I'm good at sell. Okay. He just jumped into the sea of real estate. Right. And I was wondering how he's gonna do it. He needs this, he need that, he need that. And surprisingly, he managed to close aggressively the leads that no one else done. If I can tell you that the Skywing, Sunil Kumar, is about to become one of the Guinness records, I will not be lying. So you're saying that he can become one of the Guinness record holders? Why not? Because the big achievement in the short time that he achieved, get me someone he did it with no background in real estate. Right. He's only want to have. He has a goal. Right. Other people might achieve the big achievement in short time, but they are experienced in real estate. Absolutely. They are very Yeah, well experienced in real absolutely. estate. But he's saying that I will do it. Correct. And I say, I believe you. I believe in you. I believe you. I know you will do it. Right. And
in case if you need anything, just call me. He only called me to tell one sentence: I love you. That's it. Because you believed in him. No, that was the code that he closed a deal. That's Okay, that's how that he was tells the you code. that He closed he a deal. closes the deal. In my birthday was 10th of October, Right. last October. Yes. Then the team surprised me with a small party. Uh-huh. Then he came, he said that I don't believe in physical gifts. Okay. Like this kind of things. Uh-huh. So I said, okay, he didn't get me a gift. Okay, no problem. Then he said, I will give you Uh-huh. the real birthday gift today Okay. night before you go home. Then after that he left about 6:30 like that he left. Then 30 minutes later he called me. He said, I told you. What did I say? I will give you your birthday. I said, you are serious? You closed the deal? Right. He said, yes, I closed one deal. Then not only that, wait for more. Then he hung up. Uh-huh. After another 20 minutes, he called me again. I love you. I said, Another no, deal in another you're 20 kidding. minutes. Did you close another deal? He Right. said, yes, I closed it. And this is all, if I tell you that if we have a camera in our office or I'm recording on my mobile, I can show you the proof. The reactions, But the yeah. real transaction is there in the same day, in the same time. Correct. The real transaction is already recorded with the developers. Correct. So he is a Guinness record. Guinness record, yes. He deserves. Absolutely, yeah. He deserves. Sir, what is this? What is this trick? के आज आप रिवील कर दीजिए आपका मैजिक ट्रिक जो है सेल करने का कि आप कैसे ऐसे फास्ट सेल करते हैं ताकि सबको पता चले. एक्चुअली इसमें कोई मैजिक नहीं है. Sir. लोगों का विश्वास है मेरे ऊपर. Sir. लोग बिलीव करते हैं मेरे ऊपर. और मेरा जो बैकग्राउंड है 25 इयर्स का बैकग्राउंड है. जी. मैं आपको एक छोटी स्टोरी शेयर करूंगा. जब मैं रासल गांव में जॉब करता था जी. तो एक शॉप की सेल ओनली 30,000 dirham थी. करेक्ट. उसको मैंने सेल को 110,000 dirham तक पहुंचाया. करेक्ट. मेरी कमीशन 2,500 में थी. मेरी सैलरी 400 dirham थी. मेरी कमीशन 2,500 में थी. सो बॉर्न एंड बॉट अप में हूँ. और मेरे फादर का बहुत उसमें बड़ा रोल है. मेरे फादर एक बड़े सेल्समैन थे जी. अजमेर में. वही है खाली वो कुछ राइस और राइस जो पल्सेस का जो राइस का होलसेल मार्केट करते थे. और मैं इधर प्रॉपर्टी का. मेरा बहुत बड़ा बिजनेस भी है अफ्रीका में जी. मैं बहुत जगह मैंने एक डील क्लोज करी थी इन अफ्रीका में. आपको तो दिस इज $500,000 ऑलमोस्ट. मैं $450,000 जी. विदाउट गुड्स दिए गए. विदाउट एनी गुड्स. गुड्स भी नहीं दिया उसको. कुछ सामान नहीं दिया था. अच्छा. वर्बली कंफर्म करी जी. और उसका पूरा पैसा बिफोर कमिंग द गुड्स उससे पूरा पैसा कैश हाथों हाथ दिया. $4.5 लाख की कैश डील करी. उसको गुड्स मैंने आफ्टर 7 days दिए थे. आफ्टर 7 days मार्जिन इज 20%. वाओ. और दे जस्ट उसको फिनिश किया. वो मेरी एक बहुत मतलब 3-4 अगले ने पैसा भी देते बोले 7 दिन के बाद माल दे देना. करेक्ट. सो और दैट इज आल्सो इन माय फर्स्ट ईयर इन अफ्रीका स्टार्ट. बट आप जब किसी नए इंसान से मिलते हैं वो तो आपको जानता नहीं होगा क्योंकि आप पे कैसे भरोसा करेगा कि आपकी ऐसी क्या यूएसपी है. इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूंगा. एक कस्टमर था मैं उसका नाम नहीं लूंगा. वो सुनेगा तो उसको पता पड़ जाएगा. मैं जब अफ्रीका गया था तो मैंने उसको कुछ प्रोजेक्ट ऑफर किए थे. अच्छा. उसको मेरे प्राइस सब कुछ समझ में आ गया. अच्छा. तो बोले मैं तेरे को बिलीव ही नहीं करता. मैं तेरे को कैसे मार दूंगा. मैं उसकी मार्केट में शॉप थी सब कुछ. उससे मुझसे कुछ $100,000 $200,000 बोले नहीं माल आएगा तो मैं पैसे दूंगा. ही इज नॉट बिलीविंग मी. कोई बात नहीं. मैंने ठीक है मैं कंफर्म माल लेगा. मैंने कुछ नहीं देखा नहीं मैंने उसको माल चला दिया. अच्छा. और वो माल पहुंचा. उससे पेमेंट भी किया और वो सेटिस्फाई हुआ विदाउट नोइंग हिम. मैं कोई मेरे को पहचानता नहीं हो मेरे को पैसे नहीं देगा कोई बात नहीं. मैं सामने वाले बिलीव जल्दी कर लेता हूँ. आप भरोसा कर लेता हूँ. मैं बोलता हूँ कोई कुछ नहीं है सामने लगा शॉप से. तो कभी मैं आँख बंद करके बिजनेस करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ. बट इस वजह से कभी आपको नुकसान भी हुआ होगा क्या ताकि आपने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया. होता है लेकिन मेरा कंट्रोल रहता है गुड्स के ऊपर. गुड्स के ऊपर मेरा कंट्रोल रहता है. देयर इज अ वेरी रेयर चांस बट देयर इज अ चांस पॉसिबिलिटी इज देयर. बट कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ. छोटा मोटा नुकसान चलता था लेकिन मेरे को पीछे उसका बैकग्राउंड पता था. उसकी शॉप से मार्केट में कहीं नहीं गया तो वो रहता ही है. ग्रेट. जब आप इस रियल एस्टेट मार्केट में आए थे यू आर वेरी न्यू टू द रियल एस्टेट मार्केट. मैं आपको एक इसमें भी स्टोरी बताऊंगा जी. मैंने रियल एस्टेट में आते ही मैंने क्रेडिट पे प्रॉपर्टी सेल करी है. ये आप भले आप इसको
आप कहीं पे भी दिखाएंगे पूरे जी में। जी मैंने क्रेडिट के ऊपर प्रॉपर्टी सेल करी है। पूरे रियल एस्टेट मार्केट में जी। कोई ऐसा बंदा नहीं हो जो क्रेडिट पे प्रॉपर्टी सेल करता है। ये क्रेडिट पे प्रॉपर्टी सेल करना क्या होता है सर? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एक्चुअली क्रेडिट पे प्रॉपर्टी क्या, एक क्लाइंट आया था, उसको एक प्रॉपर्टी लेनी थी, जी उसको मैंने एक दिखाई, उसको एक समझ आई, फिर उसको दूसरी समझी, उसको तीसरी समझी, जी तो उसका कुछ टोटल ऑलमोस्ट उसका जो 20% पे होता है एसपी का ऑलमोस्ट अराउंड $400,000 हो रहा था। $400,000 अच्छा $450,000। जी तो क्लाइंट बोले मेरे पास इतना फंड नहीं है, कैसे? तो मैंने आई विल मैनेज, नो प्रॉब्लम। तो उसने बोला, वो मेरा क्लाइंट भी है, जी, मैं उसको जी। माल भी चढ़ाता हूँ चाइना से। जी तो उसने बोला कोई बात नहीं, आई विल सेंड यू पार्टली, नो प्रॉब्लम, मंथली आई विल सेंड यू अच्छा एंड यू हैंडल इट। सो उसका पेमेंट पूरा मैं हैंडल करता हूँ, जी। उसका वो हमको पार्ट लेता है, जी उसकी पेमेंट मैं करता हूँ, उसका पूरा मैनेज मैं करता हूँ। तो वो एक क्लाइंट था जो सिर्फ 2 मिलियन की प्रॉपर्टी लेने आया था, वो जी। 6 मिलियन की प्रॉपर्टी लेके गया जी और उसको मैं पूरा प्रोसेस किया, सेटिंग किया। वो मेरा अच्छा दोस्त भी है, मेरा अच्छा फ्रेंड भी है, हमारे बहुत सारे रिलेशन भी है, जी लेकिन आई हेल्प हिम लाइक दिस। करेक्ट बिकॉज आप लोगों की बढ़ चढ़ के मदद भी करते हैं, तो आई थिंक दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन बिल्डिंग बेटर रिलेशनशिप्स विद पीपल। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी ऐसा नहीं करता मार्केट में, लाइक इफ यू हैव टू बाय अ प्रॉपर्टी और सेल अ प्रॉपर्टी, कोई किसकी मदद क्यों करेगा? एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ क्लाइंट। एक्चुअली क्या है, मैं काम के साथ इमोशन से भी काम करता हूँ जी और जो मेरे क्लाइंट्स हैं सब मेरे नोन्स हैं जी और सब मेरे पे बिलीव करते हैं, जी मैं भी उन पे बिलीव करता हूँ। बिजनेस चलता है, हम वैसे ही बिजनेस में बहुत उनको क्रेडिट्स देते हैं, तो ठीक है, सेम पैटर्न हम यहाँ पे भी लेके आए। जी जब आप ये स्काइविंग शुरू किए थे, सो यू एज अ रियल्टर, somebody who is the CEO of a very brand new company, जब आप दूसरे रियल्टर से मिलते हैं, so how do they react to your achievements? मतलब इतने कम समय में आपने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो बाकी जो सक्सेसफुल लोग हैं जो इतने साल से मार्केट में हैं, वो जब आपसे मिलते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं? एक्चुअली उनके बारे में तो मुझे पता नहीं है, जी। लेकिन मैं आपको अपने बारे में एक चीज़ बता दूंगा। जी मैंने आज तक जो भी बिजनेस किया ना, जी वो सब कुछ मेरे अपने ऊपर ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जी जब मैं रासल के में जॉब करता था, जी तो उनका टेक्सटाइल शॉप होती थी, मैं जी। कभी टेक्सटाइल शॉप नहीं खोली। जी फिर मैं चाइना गया, मैं जिस कंपनी में काम करता था 2000, उनका इजिप्ट मार्केट करते थे वो लोग, मैंने कभी इजिप्ट मार्केट माल नहीं चढ़ाया। अच्छा फिर मैं एक और सिटी गया, तो वो लोग करते थे दूसरी सिटीज़ में काम, मैंने कभी उनका कोई क्लाइंट किया। जो भी बिल्ड किया वो मैंने अपने लेवल पे किया। अफ्रीका में मैंने जो बिल्ड किया वो भी मैंने किसी का आदमी तोड़ के और अपना काम को नहीं किया। इवन रियल एस्टेट में भी ये क्लियर है, मैंने कोई काम नहीं, मेरे को शुरू से काम करना था, मेरे को इंटरेस्ट था, मैंने इंडीड पे पोस्ट करी और मेरे को ये मिले। बाकी मेरा अफ्रीका में बहुत बड़ा रियल एस्टेट का काम है, मेरे जी। बहुत से प्रोजेक्ट अफ्रीका में भी आ रहे हैं, जी मैं उधर एक डेवलपर भी हूँ, तो वहाँ से भी मैंने वो भी काम चालू किया, वो भी अपने लेवल पे। मैंने कोई आदमी मार्केट का तोड़ के उससे नॉलेज लेके उस पर काम किया नहीं, करेक्ट, जो भी प्ले किया मैंने अपने ऊपर किया, जो भी गेम खेला मैंने अपने ऊपर खेला, अपने भरोसे पे। अपने भरोसे पे। मुझे कॉन्फिडेंट होता तो ही मैं करता हूँ, ना तो नहीं करता हूँ, अपने ऊपर ही खेला है मैंने। किसी का भी आज तक रिकॉर्ड है, किसी का भी, कोई भी जो ये ब्रॉडकास्ट देख रहा है या कोई भी देख रहा है, जी कोई भी मेरे को ये प्रूफ कर दे कि सुनील ने ये एक चीज करके और ये चीज किया, नहीं, मैंने जो भी काम किया अपने लेवल पे किया, अपने भरोसे पे, अपने भरोसे भी किया और अपनी लेवल खड़ा किया। जी how was the reaction of other realtors, because they must be very intimidated by Sunil sir's success, and it's been really fast, really quick with a new company. So how was their reaction? What did you notice? Well, people is different. Right. So what you expect from someone, you can see different reaction from others. I saw jealousy. You saw jealousy. Yes. I saw pride. You Some people is proud Yes. of his boss. Yes. I saw other is like doesn't believe it. Surprise. Yeah. Surprised. This is too How big. is it possible? Yeah. Yeah. So, but all in all, all of them, the one who is feeling proud, the one who is jealous, the one who didn't believe that how big this happening, how fast it's happening, Right. all of them, they are sharing one reaction, which is you're very happy of this achievement. The one who is jealous about it, he wants to do the same. Right. He wants to close soon. Right. He wants to make more money. Right. Okay. Yeah. The other who feel like proud of this, they want to leave what they are doing and come next to him, like accompany him. Correct. Go where he going? I want to learn now how he is doing it. Correct. Okay. Absolutely. How he is doing it. What kind of conversation that he is holding with his client.
Correct. Okay, I can tell you that it's all about, so as he said in the very beginning, it's about honesty in business. If you are honest, whatever you say, whatever you transfer to your investors, your colleague, your friends, your family, Right. they will believe in you. Absolutely. Yeah. Once they believed that their investment is safe and will grow, I remember some of the deals, not only one or two. Yeah. The people who invest with him, who agreed to close the deal and finalize it, they even didn't know which unit, which project, in which location in Dubai. You like it, you think it's good, do it. Just because they trust. They trust him Sunil and sir they so know much, he yes. is a wise investor. Correct. He doesn't get money easy. He doesn't let money easy. Correct. Okay. He invests no matter how much he invests in the right place. That's why other people, they don't pay 10% of their budget for the marketing. Correct. He is paying more than anyone else, maybe 50-60% of the company budget in the marketing. Right. Okay. Why? Because this is the wise investment. Absolutely. Okay. Absolutely. And meanwhile, when he looking for money going out from his, until now he didn't get anything in his pocket. All the money coming, all the anything coming, Right. he put it again in the company. Correct. And this is also one of the first that I saw, that someone he is really proving that he's not here for the money. Correct. He want to grow the company and grow it fast. Absolutely. To make also why he's closing that fast, and that he's showing to his team, to show them two messages. Right. That your leadership can do it, so you can. Okay? It can happen and it is happening, so you can. Okay? He gave them like few times meeting with them. Right. He said that I have two hands. You have two hands. Correct. I have two eyes. You have two eyes. Correct. I have 2 ears. You have 2 ears. Correct. You are more experienced than me. You can close. I know you will do it. I know you will do it. Right. It's not you can do it. You will do it. This kind of confidence that the leadership is giving to their people, to their team, Right. giving them the chance that we can do it. We will do it. Correct. Okay. So, from what I saw from their side, I can tell you that they got the optimistic and confident From Mr. from Sunil. Mr. Sunil that yes, he can do this. When somebody has say $1 million or 1 million dirhams, as an investor आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि दुबई में आज किधर इन्वेस्ट करना? डिपेंड्स उनकी प्रायोरिटीज क्या है. जी. उनको रेजिडेंस में जाना है, कमर्शियल में जाना है, वेयरहाउसेस में जाना है, जी. लैंड में जाना है. जी. डिपेंड ऑन दैट. अगर किसी को कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी है. कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत से कमर्शियल टावर्स आए हुए हैं. जी. एक इसमें भी शाहरुख बायोडेनिक जो आया वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था. जी. लोगों को बहुत उसमें डाउट्स हैं कि वो क्वालिटी का क्या इशू है ये. जी. मैं बोलता हूँ क्वालिटी का 1000% उसमें इशू नहीं आएगा. जी. इसका रीज़न है उसमें शाहरुख का नाम है, और शाहरुख का नाम है तो आप जो क्वालिटी 101% उसमें बहुत अच्छी जी. है. और दूसरी चीज, मैंने भी सुना था कि ये बिल्डिंग आई थिंक लॉन्च पे ही सोल्ड आउट हो गई थी. हाँ, बिल्डिंग लॉन्च पे सोल्ड आउट हो गई थी. जी. अभी उसमें बहुत लोगों ने, और अभी उसका रेट राइज है मोर देन 10%. जी. जो प्राइस लॉन्चिंग उससे 10% ऊपर ऑलरेडी प्राइस हो गया. जी. और रही बात आज एक एक ऐसी बात है, क्योंकि जो भी मेरे को फ़ोन करता है, जी. मेरे को कोई प्रॉपर्टी चाहिए, जी. वो बहुत विश्वास के साथ फ़ोन करता है. जी. आज भी मेरे साथ एक चीज़ हुई है, किसी मिलने वाले ने कॉल किया था दिन को कि भाई क्या प्रॉपर्टी में बस मेरा 100 बजट है, जी. कैसे करेंगे आप. तो उनको मैं चाहता तो हाथों तो इंस्टेंट में उनको बताता, जी. लेकिन मैं क्लाइंट की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ. मैं सोचता हूँ कोई अपने सपने खरीद रहा है, एब्सोल्युटली. सपने खरीद रहा है, अपने लिए कोई घर खरीद रहा है, अपना कोई कोर कैश डाल रहा है. जी. तो मैं कोशिश करता हूँ उसको वही चीज़ें जो उसके बजट की हो उसके लिए अच्छी हो, अच्छी भी जैसे है. उसका फ्यूचर में उसको मिल सके. जी. मैं ऐसा वैसा बजट कोई ऑफर ही नहीं करता हूँ. जी. तो मैंने उससे टाइम लिया, मैं शाम को करता हूँ, फिर शाम को मैंने 1-2 चीज़ें उसको भेजी. करेक्ट. तो दिस इज़ अ वे आई एम वर्किंग. क्योंकि क्या है कि अगेन मैं इस बिजनेस में पैसों के लिए नहीं आया हूँ. जी. एक्चुअली जो प्यार मेरे को मिला है लोगों से, जी. मैं उस प्यार को बढ़ाने आया हूँ. जी. बट सर, आई डोंट यू थिंक कि it's very
आयरॉनिक टू से कि आप पैसों के लिए इस बिजनेस में नहीं हैं, बिकॉज रियल एस्टेट एवरीबडी नोज दैट दिस इज द टॉप मनी मेकिंग इंडस्ट्री इन दुबई टुडे. सो जब आप ये कहते हैं कि जब आप इसमें पैसे के लिए नहीं है, तो यकीन करने में थोड़ा मुश्किल नहीं होता लोगों के लिए? यकीन करने का आपको यकीन नहीं है. मैं ऑलरेडी चाइना से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करता हूँ. मेरा ऑलरेडी बहुत बड़ा बिजनेस है, चाइना टू इंडिया, चाइना टू अफ्रीका, चाइना टू दुबई. मेरा ऑलरेडी मोर देन 400 स्टाफ है. रियल एस्टेट का मैंने अभी काउंट नहीं किया, जिसमें मेरी टीम अभी 25+ पीपल की है, जो आगे चल के 100+ का हमारा टारगेट है. डेफिनेटली. और आपको बिलीव नहीं होता है वो, तो उसको आपको मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा या कोई. आज बना बनाया बिजनेस छोड़ के मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ. वहाँ पे मेरे पास, मैंने अभी जैसे आपको बताया कि मैं काम करूँगा तो मैं 2 लाख बचेंगे, अगर काम नहीं करूँगा तो 4 लाख कमाऊंगा. दैट इज़ अ ट्रुथ. क्योंकि मैं सोचता हूँ बहुत जनों का परिवार चला है, कुछ बिजनेस मेरे को लॉसेस दे रहा है, मैं आज उसको कंटिन्यू करता हूँ. ये मेरा नेचर है. और मेरे पास ऑलरेडी, मैं जब उस बिजनेस में था तो मैं आराम से सुबह 8, साढ़े 8, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भी उठता था. और 3-4 घंटे ऑफिस जाना, 5 घंटे शाम को 5 बजे घर पे फैमिली के साथ बैठना होता. अभी मेरा लाइफस्टाइल पूरा चेंज है. मैं सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे उठ जाता हूँ, फिर उसके बाद 2 घंटे जिम जाता हूँ, फिर मैं इधर आता हूँ. मैं अपने तेरा ऑफिस में लास्ट 2-3 महीने से गया भी नहीं, ओनली वंस आया. तो अगर मेरे को ऐसा ही होता तो मैं उसमें बहुत कंफर्ट जोन में था. करेक्ट. बट मैं कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा नहीं, मेरे को पसंद नहीं है. करेक्ट. मेरे को कुछ नया करने का रहता है. जी. और पैसे मैं उधर भी कमा रहा था. आज मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है. जी. मेरी वाइफ एक चीज़ बोलती है, इस रियल एस्टेट बिजनेस आपको कुछ मिले नहीं मिले, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आप आपने अपनी हेल्थ का ध्यान देना चालू कर दिया, वही मेरे लिए बहुत है. वही मेरे लिए बहुत है. पैसा आए नहीं है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. पहले आप इतना हेल्थ पे केयर नहीं करता था. मैं बहुत केयर नहीं करता था. अभी मैं 100%. आज मैंने ऑलमोस्ट 3 मंथ से मैंने मिठाई नहीं खाई. दिवाली पे मिठाई नहीं खाई. इवन मेरी वाइफ ने मिठाई बना दी, वो भी नहीं खाई मैंने. उसके वो बहुत बड़ा पंगा हुआ था, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, क्या करने का. लेकिन आई लर्न, मैं थोड़ा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या जरूरी है. मैं अपने बच्चों को भी मना करता हूँ. मैंने आज, मेरे को पूरी बहुत पसंद है, मैं पूरी नहीं खाई है 3 महीने हो गए. तो ये चेंजेस किए, क्योंकि ऑयली चीजें आप अवॉइड कर रहे हैं, सब कंट्रोल करना होता है. और ठीक है. और इस इंडस्ट्री ने मेरे को अभी और मजा आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे को नाम भी मिल रहा है, चीजें मिल रही है. ठीक है. मेहनत अपनी जगह होती है, लेकिन क्या बोलते हैं ना कि सबका सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है. जी. पहली बार जब आपने सोचा कि आप रियल एस्टेट में जाएंगे, तो आपने सोचा था कि आपकी लाइफ इतनी जल्दी फॉरवर्ड जाएगी, या आपको कॉन्फिडेंस था कि मैं इतनी जल्दी इतना सक्सेसफुल बन जाऊंगा? नहीं, उतना कॉन्फिडेंस उतना तो नहीं पता था. लेकिन मैं मेरे को 25 साल हो गए बिजनेस करते हुए. मैं आपको, जैसे मैंने अपनी रासल के शॉप की बात बताई, वहाँ पर मेरा जो 30,000 सेल थी वो 110 पहुँच गई. मैंने उसके बाद ही वो जॉब छोड़ दी कि मेरे को काम नहीं करना है. मेरे को मेरे बॉस से बोला, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तेरा सैलरी भी अच्छा है, तेरा काम अच्छा है. मैंने कहा नहीं, इस दुकान की कैपेसिटी खत्म हो गई. अब इसके ऊपर मैं इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती. वो एक कैपेसिटी है. जी. तो वही चीज़ है. मेरे को एक बड़ा ग्राउंड चाहिए था खेलने के लिए, और मेरे को जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में घुसा, तो ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है. इस पर आप जितना बड़ा खेल सकते हो खेलो, आप जितनी काम करना सकते हो कर सकते हो. मेरे को क्या रीचेबल जगह पहुंचना था, और एक सेफ्टी सिक्योरिटी का भी कंसर्न था. मैं अफ्रीका काम करता था, तो मेरी फैमिली ये सब बोलते थे कि अफ्रीका आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक लिमिट रखो. लेकिन अभी दुबई के लिए मेरी फैमिली सब जने बोलते हैं आप काम करो. मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है इसमें. जी. और आपका विजन क्या है स्काईविंग के लिए अगले 3-4 महीने? व्हाट डू यू सी फॉर स्काईविंग? व्हाट इज योर विजन? नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमारा एक चाइना ट्रिप लग रहा है. चाइना में हम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं. जी. दुबई प्रॉपर्टी शो. चाइना में तो आप बहुत साल रहे भी हैं, तो आपका होम ग्राउंड है. होम ग्राउंड है जी. और वहाँ पे बहुत उस पर बहुत वर्किंग चालू है. हम ट्राई करेंगे कि हम लोगों को और अच्छे इन्वेस्टमेंट करवा सके, और उनको जो घर चाहिए, जिसको बोलते हैं सपनों का घर, वो हम दिलवा सकें. सो आप चाइना में ये प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं ताकि चाइना के कस्टमर्स को आप दुबई में प्रॉपर्टीज दिला सकें. वहाँ पे चाइना में बहुत से कस्टमर्स हैं जो डिफरेंट नेशनलिटी के हैं. जी. इंडियंस हैं, इजिप्शियंस हैं, बहुत उन लोगों के लिए जो इजीली दुबई नहीं आते, उनको दुबई के बारे में बताना. सर. और सेकेंडली
जो वहाँ के लोकल चाइनीज़ हैं वो भी बहुत बाहर इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी है। करेक्ट। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब कोविड आया था जी, तो कोविड में जैसे ही चाइना का थोड़ा इश्यूज हुआ था, मैं भी उस टाइम चाइना था, फिर चाइना से हम इंडिया गए जी, तो सब जने स्टक हो गए क्योंकि उनका बिजनेस सबका चाइना था। Correct. तो हर कोई चाइना नहीं जा पाता, कोई 1 ईयर था, कोई 1.5 ईयर था, कोई 2 ईयर था, वहाँ अटक गए थे, मतलब इंडिया अटक गए थे, इंडिया जी। के वापस रिटर्न बिजनेस करने नहीं जा पा रहा। तो हम लोग, जैसे मैं था, मेरे पास दुबई का वीज़ा था, जी। तो आई स्टार्ट इन अगस्त 2020 अगस्त आई स्टार्टेड जी, अगेन वर्क। सो मैं वैसे ही एक सजेशन है या एक आप बोलो गाइडेंस है कि भाई जी। आपको 100% अगर आप कोई भी बिजनेस हो, आपका एक पैरेलल ऑप्शन होना चाहिए लाइफ में। जी, जैसे मेरा पैरेलल ऑप्शन था, मैं दुबई आ गया, जी, आज दुबई में कोई ये चीज़ मिल गई, आपको कोई ना कोई ऑप्शन देता है। करेक्ट। तो एक जगह काम करने से आप 2 या 3 जगह अपने पॉइंट हो, एटलीस्ट 2 जगह, कल को जी। आपको वहां से कोई प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे भी आ सकते। करेक्ट, एक पैरेलल इन्वेस्टमेंट या एक पैरेलल बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस हो, जी, क्योंकि अभी हम यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस है इन फ्यूचर जी, में, जी। हम यहाँ पे आगे चल के लोगों को दूसरी भी फैसिलिटीज देने वाले हैं। जी, लाइक किसी को कोई बिजनेस करना है, जी, किसी भी तरह का बिजनेस करना है, जी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो दुबई का मेरा एक्सपीरियंस है, एब्सोल्युटली, जो मेरा चाइना का एक्सपीरियंस है, उसको जीरो से ही लास्ट तक हम उसको पूरा करने से, कंपनी खोलने से लेकर हाँ। कंपनी का समझो उसका इंटीरियर है वो करने तक, उसको एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय तक पूरी सेटअप हम करवा के देंगे। इवन जी। उनको जो सामान भी भरना है, जी, एग्जाम्पल किसी को सुपरमार्केट खोलना है, 1 to 10 खोलना है, जी, तो उसके लिए उसको लोकेशन, स्टाफ, उसमें क्या सॉफ्टवेयर लगे, वो हाँ, रैकिंग, सब कुछ हम करवा के देंगे। प्लस उसके अंदर उसको माल क्या डालना है वो भी करवा के देंगे, और उसके लिए उसको आगे चल के कोई मैनेजर चाहिए वो भी प्रोवाइड करके देंगे। जी, 360 सोल्यूशन हम लेके आएंगे। जी, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, ये आपका जो विजन है। हाँ, हमारा विजन है। हर क्लाइंट को उसको घर भी दिलवाएंगे, जी, उसको दुकान भी दिलवाएंगे, और उसको बिजनेस भी करवाएंगे। सब Correct. ये मतलब सब चीज़ें उसको एक ही बकेट में मिलेंगी, उसको खाली फॉलो करना है करेक्ट। और चीज़ें करनी है। Doctor sir, when you hear about his vision, when you hear about his plans, do you get intimidated or do you eagerly wait for those plans to happen? Any plan is connected with a time frame. Right. Okay, so when we discussed where we want to go in the first year, I could find what we should achieve in 6 months happening in the first 3 months. Right. Our plan is big and ambitious. It's not only dream; it's a real plan. Right. And the vision, it's that a future living. So you can say that we are replaying what we are going to do in the future. Correct. So it's not I feel intimidated or I feel like I'm eager to have it. I am touching it happening. So and this is not the first time in my life. This is not the first time in his career, but it's first time in my life that I find the real partner who is doing it exactly as we planned, and we are both going in this Exactly direction. how you wanted it to be. Yes, and fast enough. So I don't know if we can say where we want to go by our plans now, Right. but it's big and we are doing it. In the solution that we are providing in real estate, it's not not been done before by any other real estate company. Right. The people who is coming to Dubai to invest in real estate, they are not coming only to invest in real estate. So they want to come to Dubai for a new lifestyle. So we Yes. are helping them to move all their career, their life, their business, their family, everything here, and they just sit back. Everything will be ready, and they collect investment and enjoy the lifestyle. This is as a short story. Yeah. Yeah. And where we want to go as well is most of the people now is talking about the prop tech. One of our project is we are working on a prop tech project. We will reveal very soon. Okay, this project will change the market. Okay. We will begin with ourselves. Right. This is a tool that any real estate company needs. Right. So we are going to do it ourselves for ourselves first. We apply it and we'll check the Once result. it is successful, then you'll reveal it to the market. It is because it's solving a need Right. in the market. Right.
So if you want to succeed, you follow the needs. Correct. Okay, this need is not our own need; it's the market need. Correct. But we're gonna do it. We will apply it, and it will be beyond what the people thinking, and it will be more than what they are expecting. 360 solution Right. will solve the issues for the investors, the brokers, and the developers. And you For can say all of them at the same platform. in the same platform, and you can say, if I can just reveal one part of it, we Yes. develop the developers. Right. But it's still a surprise. It's still We are working with it. we still, the reveal is yet to happen. Yes. Right. Yes. Maybe So- next episodes. Absolutely. So बहुत सारे बड़े plans है in the future for Skywing. Also, जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि what is your focus mainly at this point of time? To build your brand or to build the brand of Skywing? Both are my. जी. So if skiving, we build a skiving brand, and the same thing my brand. Both are opposite each other. जी. So both are is the same. There is no difference. आप मानते हैं कि एक ही चीज है. हाँ, Skywing का brand एक बने. सिक्के के दो पहलू. जी, एक सिक्के के दो पहलू. Absolutely. So, thank you so much for your time today, Sunil sir. Thank you so much for your time today, Dr. Sir. And it was wonderful having you guys on the podcast today. So, hopefully, for future podcasts and for future, all the best for your future. All the best for the vision of Skywing. All the best for your China trip, Sunil sir. Thank you. That was episode 2 of the Skywing podcast, everybody. Thank you for joining in, and do subscribe to our YouTube channel for more such videos. Thank you.